बट पैसा तो बनाते ही हैं, ऐसा नहीं है कि सुनने में लगता है कि बॉलीवुड मेकिंग लॉट ऑफ मनी, बट दैट्स नॉट ट्रू. कास्टिंग अगर सही नहीं है तो फिल्म का मतलब नहीं है. I will keep telling this to people. Imagine Tiger Shroff in Gangs of Wasseypur and Nawaz in Student of the Year. वो व्यापारी बुद्धि होती है ना, वो व्यापारी बुद्धि व्यापारी सोच सकती है वो. और इंडिया में जॉब को लोग सीरियसली नहीं ले. मैंने देखा था वेस्ट में कास्टिंग डायरेक्टर बहुत बड़े लेवल पे होता है. पॉपुलर हुआ जब लोगों को समझ में आया वो गैंग्स ऑफ वासेपुर. That's a brilliant movie. I can watch that movie 10 times if I have to. I must have already seen it 10 times. And what is that one actor in your opinion that stood out like, yeah, my best find? I think Sushant. Okay. But has it been कि आपने कोई बहुत अच्छे एक्टर को रिजेक्ट कर दिया, but then later on that actor came out to be like, wow. In conversation with Mukesh Chhabra, the man with 20 years of legacy, and I think he's not here for closing anytime soon. He's going to make this another 30 or probably another 50, and he's going to leave that legacy on for us to remember him for the rest of our lives. So I've probably enjoyed every single minute of this conversation. There's so much I've learned about the industry that I've never been a part of. So, if you guys want to learn more, understand more, and, get real insights of what exactly happens in the casting industry, you should come watch this episode. Mukesh, finally, it's good to have you. I'm also very happy. Welcome I'm very to the excited. podcast. This is very different. I've always done podcast with Bollywood people, producer, media people asking about casting, about Bollywood. And thank you. This is very different and very happy. Business की बात करो मेरे साथ. Business. I think I remember when you said, जब मैं आपके ऑफिस आया था, you said, you asked me because you thought that I'm also some guy who is trying to get into Bollywood in some way. And I remember you telling me, I think हम business के बारे में बात कर रहे थे, and then you pointed a comment saying good looking businessman, and I said no interest of me coming into movies at all. I'm very happy to. I keep praying to myself कि I hope मैं किसी normal लोगों से मिलूं, not from people from Bollywood. Yeah, not interested. It's very trust me. मेरे बहुत दोस्त हैं जो मुझे बोलते हैं कि producer बन जा. No, please. Movie में पैसा लगा ले. No. But मैं हाथ जोड़ लेता हूँ. I'm the only one who saying उधार ले जा. I'm the only one saying no. Imagine like मैं बोल रहा नहीं भाई please. Why do you say that? Why are you saying that? Because see, if you don't know the business, don't get into it. You will never understand. Even I still don't know how they make profit. Yeah. मुझे नहीं पता कि 100 करोड़ के बाद कितना में डिवाइड होता है, कहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन कट कितना होता है, कुछ नहीं पता. आई थिंक बिजनेस जिसको नहीं आता है तो मैं अभी तक प्रोड्यूस कर लेता ना. आफ्टर आई स्पेंट 20 years in this business. Well, you made a movie, no? I directed a film. Okay. You never produced it. Sorry, you directed a movie. I directed a movie. So yes, as a director, I can direct as many as I want. As many as you want. Because I don't know the production business, how they produce, who distribute, how the कितना कट जाता है local यूपी में. But पैसा तो बनाते ही हैं, ऐसा नहीं है कि पैसा. I'm sure that way is running. It's very successful business, but not as successful as so many business people I know. सुनने में लगता है कि Bollywood making lot of money, but that's not true. वो व्यापारी बुद्धि होती है ना, वो व्यापारी बुद्धि व्यापारी सोच सकती है, वो ग्लैमर के बारे में नहीं सोच सकती. I can be a great friend to you, but I don't know if we can ever do a movie business together. So I can drink with you as much as you want. No, please, I don't want more people from the industry. I'm many friend, but I'm actually it's good to meet always. I like to meet people not from the industry also. No, it's otherwise if you meet Bollywood people and the producer and director going to say the same talk. क्या चल रहा है, किस क्या हो रहा है, but you're working. So I think वो तो every day चलता है. I'm very happy that that's why I said Shivani, let's do this. It'll be very interesting because two different people, different personalities, different field, and मजा आएगा. That's the whole point. It's a good thing, right? क्योंकि you have like so many years of experience, and you've been, I think, tasting all sides of the water. You've tasted all sides of the water. You know how the entire movie world works, and I didn't want to call it mafia, but I don't know if there's a mafia term to it. But you know how it absolutely functions, right? And as a layman who's only been a spectator of watching movies, मेरे लिए it's always been very like, हाँ यार, okay. Now, of course, when you grow old, you know कि ये reality नहीं है, ये films है. Most people, Mukesh, I mean, I have a perspective where I feel that casting is like the heart of the movie, correct? In my opinion, and you might be like a great director, you might be like one of the best writers in the world, but if you don't have the right people, you're done doing it, you're done, right? The movie has to, I mean, I won't say flop, but it has to tank, or it will never go in the direction, it won't give you the product you need. How do you define your role
Because for me, you're a gatekeeper. If you're not there, the movie's not happening. I think you're absolutely right when saying कि casting अगर सही नहीं है तो फिल्म का मतलब नहीं है. I will keep telling this to people. Imagine Tiger Shroff in Gangs of Wasseypur and Nawaz in Student of the Year. You're done. So I think that's. I'd love to see that also. Yeah. So but then you because अगर आपको casting correct ना हो जितना मर्जी अच्छा script लिख लो. Even if you Martin Scorsese को भी लिया, if you go wrong, it's done. It's 80% of the filmmaking, I believe. If you cut the right actor, because I realize you see with all the film from the beginning, you see Bandit Queen, you see Mother India, you see Boot Polish, you see Anari, you see Avara, you see all the great films to तब की फिल्म okay. You see now also whether the Gangs of Wasseypur, whether it's all the Maharani, Delhi Crime, all the big shows you see, Mirzapur, ये सब casting की वजह से चले. And of course great writing and great direction also important. But अगर आपके वो actor नहीं है सही बात करने के लिए, then कुछ मतलब नहीं है. As I said, you're the gatekeeper. Like, you're extremely important as the director of the film or the writer of the film, right? Because you think कि मुझे कौन चाहिए. Director might come and tell you कि हाँ यार मुझे एक रणबीर कपूर चाहिए एक मूवी के लिए. But do you like push back to the director and say नहीं? Yeah, I fight a lot. They pay me for my point of view. They don't pay me to say yes. But it's not like कि okay director ने बोल दिया तो मुझे लाना ही है. नहीं, I fight. I only say that you hire me if you're paying me so much money. So I should at least listen to me. क्योंकि मैं yes boss तो नहीं हूँ. That's the reason कि all the director from last 15 years मुझे repeat करते रहे. अभी तक ना राजू सर है ना इम्तियाज ना विशाल जिन्होंने कभी तक रिप्लेस नहीं किया. बिकॉज दे मस्ट हैव रिप्लेस्ड द डीओपी, प्रोडक्शन डिजाइनर, एवरीवन, नॉट मी. Isn't that also an art of great relationship? Like, you are great at. If you're not good at your work, nobody wants to work with you. Relationships, it's not, because ultimately it's a business here. So you're saying that relationships don't matter in Bollywood? It's your work. Of course, relationships है. अभी like you and me are friends. हम comfort हो सकते हैं साथ में. But if you don't like my work, why will you pay me salary? Why will you pay me? 100%. You said ना हम लोग हमेशा दोस्त रहेंगे. मैं तो इम्तियाज के साथ डिनर भी करता हूँ, दारू भी पीते हैं कभी कभी. Correct. But अगर मैं अच्छा कास्टिंग नहीं करूँगा, why will you take me? But does it come back to you if the film also flops in that case? Not really. But अच्छा है जब फिल्म नहीं चलती है तो you feel bad because आप सब इमोशनली इन्वेस्ट करते हो. You investing your time, you investing with the director. आप पूरी लाइफ फोकस करते हो पूरी फिल्म पे उस आदमी के साथ. और इस फिल्म में आप 7 साल लगा रहे हो, 6 साल, दंगल में 1.5 साल लगाया, ब्रह्मास्त्र में 6 साल लगाया, रामायण को भी 4 साल हो गए. 4 साल हो गए. 4 साल to be working on Ramayan. I said no to so many films because of director only. I said who will handle this guy for next 2 years? You're not spending one day, right? अगर आप एक फिल्म करते हो तो आपकी जिंदगी का 8 महीने से लेकर 2 साल तक जाता है. तो मुझे 2 साल पीस में भी तो रहना है. बट मैं हमेशा अपने आप के ना काम को बहुत पढ़ के जाता हूँ कि किस तरह की फिल्में लोग बनाते हैं, इनका बिहेवियर कैसा है, इनकी सोच कैसी है. वो मैं पढ़ के सोच समझ के स्ट्रगल करने आया था. मैं ऐसे स्ट्रगल करने नहीं आया था. क्योंकि मुझे लगता है कि स्ट्रगल एक ऐसी चीज़ है कि बहुत प्लान करके स्ट्रगल करना चाहिए. लोग रैंडमली स्ट्रगल करते हैं. रैंडम स्ट्रगल मत करो. स्ट्रगल कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? नो है, नो. उनको पता नहीं कहाँ जाना है सुबह उठ के. मुझे पता था मुझे सुबह उठ के कहाँ जाना है. आई थिंक मैं लोगों को लेकर बहुत केयरफुल रहता हूँ और कि किसके साथ काम करना है वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स हाउ चूज माय डायरेक्टर केयरफुल. तभी मैंने शायद डायरेक्टर को चुना. दे ऑल वेरी बिग एंड वेरी सक्सेसफुल. You won't believe, there was this movie that you were a part of. It was called Love Shavte Chicken Kurana. Yeah, and you think you did an acting, and I know Monal is also my childhood friend, and we were watching a movie together, and you had a dialogue in that. जब वो agreement नहीं होता है, and that Sardar is Vipin Sharma, right? So it's a banter. Yeah. And I think we've used that banter amongst our friends for the longest. Yeah, exactly, right. So all our improvisation. Yeah. So what is that about? So you like to do acting, or was it like a role कि यार चल मैं कर लेता हूँ? नहीं, इस लाइक कि मेरे जितने भी दोस्त यार हैं ना जो फिल्में कर रहे हैं, वो मुझे बोलते हैं कि तो गेस्ट अपीयरेंस कर दे. बट वो गेस्ट अपीयरेंस तो नहीं था यार. वो अच्छी एक्टिंग थी, मतलब अच्छी. सब लोग थी. मैंने स्कैम भी किया, वासीपुर भी किया, ये सब. आई थिंक एक्चुअली हुआ क्या था कि वो समीर भी दोस्त था हमारा, वो मेकिंग हिज फर्स्ट फिल्म. जैसे तू कास्टिंग पे कर, सेट पे भी रहे. एसोसिएट था, उसको भी कहने गुस्सा आती है. तो एक्चुअली हम लोग सब उस फिल्म में थे कि हम सब लोग सेट पे रहेंगे तो पैसा भी वेस्ट हो रहा है, तो इनको कुछ ना कुछ दे दो तो दोनों काम हो जाएंगे. ये हुमा के भी साथ में रहता है, कुणाल और मी हम रंग दे फतंदे के दोस्त हैं, तो उसको भी हैंडल कर लेंगे. हुमा एक ही फायदा होगा कि एक चीज़ करते हैं कि मुकेश को इसमें डाल देते हैं, इसको इसमें डाल देते हैं, इसको सेकंड ईडी में डाल देते हैं, इसको कास्टिंग ईडी बना देते हैं, तो सब सेट में काम भी हो जाएगा और पैसे भी कम खर्च. But you were not a casting. I was casting director also. You were casting director also. And the workshop also. And then I said कि इसको ले लो, सेट पे होगा ही ना
तो इसको ही करने दो। तो उससे अगर पैसा कम होता है ना, बहुत कुछ चीजें ऐसे इम्प्रोवाइज करनी पड़ती है लाइफ में। But it was great acting, yeah. Even in Scam, it didn't seem like you're not like a professional actor. It seemed यार like मेरी you ट्रेनिंग like to एक्टिंग do में it. है ना, ट्रेनिंग तो एक्टिंग में है, पर मेरी प्रॉब्लम है कि यार मुझे ऐसा एक्टर बनना नहीं है, मेरे चाह नहीं है। नहीं तो अगर होता तो आई कैन एक्चुअली एक्ट बेटर देन सो मेनी पीपल हु आर एक्टिंग इन बॉलीवुड। पर वो करना नहीं You है। want to name some that you think? नो, सो मेनी ऑफ देम, दे मेड इट वेरी बिग नाउ। Okay. Yeah. बट आई एम थिंकिंग मुझे करना नहीं है। इट्स लाइक हाउ यू सेड यू डोंट वांट टू गेट इनटू फिल्म प्रोडक्शन, तो ऐसे मुझे एक्टिंग करना नहीं है। But then you're happy with what you're doing. Yeah, I love casting, I love directing, I love writing, I love organizing this festival, I love doing workshops. तो मुझे वो काम में मज़ा आता है। तो एक्टिंग मुझे लगता है कि बहुत मैं अच्छी कर सकता हूँ, मुझे करनी नहीं है। फिल्म प्रोड्यूस करनी है, फिल्म लिखनी है और फिल्म कास्टिंग करनी है, वो काम करना है, मुझे एक्टिंग नहीं करनी है। Interesting. क्लैरिटी, आई थिंक वो मैं बोला ना, क्लैरिटी होती है ना तो आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन कम होता है। मैंने बहुत से लोगों को मिलता हूँ जिनको एक्टिंग भी करनी है, ये भी करना है। बोले यार ये एक चीज तो डिसाइड कर ले, ताकि मुझे कास्टिंग से इतना प्यार है, मैं उस पर टिका रहा। तो 20 साल तक आप नहीं टिक सकते हो। ये बोलते ना कितने कास्टिंग में आए, कितने चले गए, एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, मेरा नहीं आया। मुझे लगता है दिस इज माय फर्स्ट डे बिकॉज़ आई लव इट सो मच। But you're big in what you do, right? Yeah, I love it, मुझे मजा। Not a lot of competition because you've been like at it. You've placed. Even I don't like yourself. competition, I don't like more. But you positioned yourself well. Yeah. Right? You've been doing what you do, and Yeah. as you rightly said, you love what you do. And the minute you start loving what you do, आपका काम automatically अच्छा होने लगता है. Yeah, and it's not a 10 to 5 job ना। Yeah, yeah. एक तभी आप बड़े 24 घंटे काम करना पड़ता है। ऐसा तो नहीं है कि संडे दिमाग बंद कर दो, कि बैंक वाला का फोन बंद कर दो। आपको दिमाग कास्टिंग, हम सिटिंग लुकिंग एट ऑल द पीपल, मुझे पता है इसको कहाँ कास्ट करना है, इसको कहाँ कास्ट करना है आपको। तो आई थिंक वो 24 घंटे का काम है ना। Absolutely. Because I love Your it. mind is always working. पर when you work in किसी बैंक में काम करते हो तो अपने लैपटॉप बंद करते हो, शट करते हो, घर आ जाते हो। As hectic as you sound, in terms of how your life is, do you get paid that well when you are associated? No. So are you saying that you are a talent that doesn't get valued? No, at least आज से पहले कास्टिंग डायरेक्टर इंडिया में थे नहीं ना। हॉलीवुड में 100 साल से हैं, हमारे यहाँ से 15-20 सालों से हैं। तो अभी भी लोगों को बहुत टाइम लगा कि इस प्रोफेशन को खड़ा करने के लिए। It took me so many years to explain people why this department is important. पहले कास्टिंग डायरेक्टर भी नहीं होते थे, किसी का ऑफिस भी नहीं होता था, किसी को क्रेडिट भी नहीं मिलता था, ईडीज कर लेते थे। जब नया टैलेंट लीड में आने लगा तब जाके इनको वैल्यू समझ में आया। तो अभी भी उनको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हूँ क्योंकि मैं सबसे पॉपुलर कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। But you're giving them results, right? हाँ, बट अभी भी वो लगता है कि कास्ट तो डिसीजन तो हमारे ही होता है ना फाइनली। ये अभी भी उनके मन में थॉट रहता है। But आपको लगता है कि recommendation is better than decision? You're recommending. आप recommendation, recommend हाँ, कर रहे नहीं, हो पर recommend तो करता है तो उसी पे तो डिसीजन बेस्ड होता है ना। If I'm recommend, they trust my recommendation कि this person is correct. Correct. So basically they pay me for my recommendation. They don't pay me for my कि क्या अच्छी casting करें, कि he suggested this person is correct. हाँ. तो बेसिकली आप जब अपना नाम कमा लेते हो ना, लोग आपके कि ये अच्छा है, अच्छा मुकेश बोल रहा है तो अच्छा है, तो उतना ही फायदा होता है। ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट डेवलप होता है, राइट? वो ट्रस्ट का पैसा मिलता है आपको, पर उतना नहीं मिलता कि जिससे आप बोलोगे कि यार यू मेक शिट लॉट ऑफ मनी। बट इनली के दैट कि आई मेक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, कि पूरी कंपनी चला सकता हूँ, सबकी सैलरी आती है, किसी की सबसे टेंशन है कि सैलरी में किसी की मिस हो जाए। आई मेक श्योर कि सैलरी के लिए पैसे हों, रेंट के लिए पैसे हों। ऑफकोर्स थोड़ा बहुत हर कंपनी में रहता है। कोई बोलेगा कि जिनके पास $1 मिलियन है उनकी कंपनी में लास्ट में स्ट्रेस रहता है, तो वो नॉर्मल है। सबके पास स्ट्रेस है, सबके पास स्ट्रेस है, एब्सोल्युटली। जो 10 रुपए कमाता है वो भी स्ट्रेसफुल है, जो 10 लाख रुपए कमाता है, जो 10 करोड़ कमाता है, सब स्ट्रेस में रहता है। स्ट्रेस में। बट मुकेश एज एन इंडिविजुअल 20 years ago, what was that drive that you came to this city or you wanted to build yourself in this city as a casting director? What was that move? Was it like कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में कुछ करना है? Yes. Was it like कि मुझे सिर्फ कास्टिंग डायरेक्टर ही मुझे बनना है? फिल्म इंडस्ट्री में रहना था, फिल्म इंडस्ट्री में बचपन से। वो बहुत श्योरिटी थी, बहुत बचपन से। मैं 13 साल की उम्र में ड्रामा में चला गया था, नाटक में चला गया था, मुझे फिल्म इंडस्ट्री में ही रहना था। मतलब दिल्ली में जितने भी लोग शूटिंग के लिए आते थे, मैं वहाँ भी सेट पे चला जाता था देखने के लिए। मुझे फिल्म में ही रहना था। तो मुझे समझ में आया कि मुझे फिल्म में रहना है तो मुझे कुछ भी डिपार्टमेंट में डाल दो, आई जस्ट वांट टू बी ऑन सेट। ओके, इसलिए आई स्टार्टेड एज असिस्टेंट डायरेक्टर। तो वहाँ से उनको लगा कि इसको बहुत सारे एक्टर्स जानते हैं। What was the first film you did? दिल्ली में किया था रिची मेहता का फिल्म, देन चिंटू जी many years ago, 18-19 years ago, देन रंग दे बसंती एंड असिस्टेंट। Wow. तो ऑल दी फिल्म मुझे पर हमेशा जॉब क्या देते थे, कास्टिंग संभाल लेगा, कि एक ड्राइवर लिया, एक छोटा बच्चा लिया, तो सब कुछ जानता है, अरे वो उसको ले लो, अच्छा करेगा, आप सामने आ जा। तो आपको मालूम नहीं होता कि असिस्टेंट की ये बाद में ये जॉब बन जाएगा।
तो मुझे लोगों को लगने लगा कि अच्छे सजेस्ट करता है, तो फिर लोगों ने मुझे एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर बनाना शुरू किया कि इसको बुलाओ सेट पे, ये बाकी छोटी छोटी कास्टिंग संभाल लेगा। Because you were a people's person. या एंड ऑल्सो कि ये अच्छा डायरेक्ट कर लेगा बच्चों को, ये ढूंढ लेगा फेस करेक्टर से। अब यहाँ पे 6 डिफरेंट पर्सनालिटी है, मुझे पता है इसको कहाँ पे डालना है, पर मुझे नहीं पता था कि वो प्रोफेशन है कास्टिंग का। मुझे लगता है ईडी का जॉब है, कॉस्ट्यूम करता है, कोई सेट करता है, मैं ये करता हूँ। तो धीरे धीरे वो जॉब फुल फ्लैज मुझे समझ में आने लगा कि दिस कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग जॉब। और इंडिया में ये जॉब को लोग सीरियसली नहीं ले। मैंने देखा था वेस्ट में कास्टिंग डायरेक्टर बहुत बड़े लेवल पे होता है। धीरे धीरे जब ईडी के टाइम पे जब मुझे फिल्में पूरी फिल्मों में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम मिलता था, लेकिन सिर्फ कास्टिंग संभालता था, बैकग्राउंड कास्टिंग, वन डे प्लेयर। फिर ये फुल फ्लैज जॉब बना। आई थिंक लव आजकल था, उससे पहले चिंटू जी था, बहुत से, लेकिन पॉपुलर टिलर पार्टी भी, लेकिन पॉपुलर हुआ जब लोगों को समझ में आया वो गैंग्स ऑफ वासेपुर। जहाँ से ने पहली बार मुझे क्रेडिट दिया, ओपनिंग क्रेडिट कास्टिंग डायरेक्टर का, जहाँ से द होल गेम है पुल्ली के लोग रह था कि जो आप बहुत अच्छा है। तो फिर वो नाम आया, क्रेडिट पोस्टर में नाम आया, बिगनिंग में नाम आया, नाम लोगों को पता होना चाहिए पहले। तो मैंने ना जितनी भी शॉर्ट फिल्म थी, FTA वाले बच्चे, कोई शॉर्ट फिल्म बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, मैं कहा मैं सबके करूँगा फ्री में, मुझे नहीं पता, मैं करता हूँ, पर नाम चाहिए। लोगों ने ना मेरा नाम बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू कर दिया कि स्क्रीन पे ये क्या जॉब है, ये क्या जॉब है, जब दिया। तो फिर मैंने बाकी फिल्मों में भी लिखने शुरू कर दिया कि भाई ओपनिंग में क्रेडिट चाहिए, पोस्टर में नाम चाहिए। बट उसकी वजह से आपके पैसे वो कम करने लग गए थे? नहीं, बिकॉज उनको वैल्यू एडिशन होना शुरू हो गया ना, फिर उन्होंने नाम देना शुरू कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने बोला कि बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, तो मैंने एक ऑफिस को फॉर्म किया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगा जब नाम आना शुरू किया, मुझे लगा अब नाम की लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी बहुत बॉलीवुड के डायरेक्टर जो 90s फिल्म में बना रहे उनको भी अभी भी समझ में नहीं आ रहा था क्यों। लेकिन वासेपुर के बाद थोड़ा सा क्लैरिटी लोगों के दिमाग में आया। But do you get paid by every artist you provide, or do you get paid by per film? fees, casting fees? It's a fees. It's a fees. It's like how DOP, how production designer, how set. But that does not define कि मैं 300 लोग कास्ट कर रहा हूँ या मैं 10 लोग कास्ट कर रहा हूँ या मैं 2 नहीं, अगर बड़ी छोटी फिल्म होती है तो ऑफकोर्स थोड़ा पैसों में ऊपर नीचे होता है कि 3-4 लोग तो करने हैं यार। और वासेपुर में 300 लोग हैं, किसी में 400 लोग हैं, किसी में 200 लोग हैं। But we all know movies are like not very heavy on budgets, right? They are very tight. हाँ, लेकिन वो कभी कभी रिलेशनशिप, जैसे बोला ना, यहाँ पे रिलेशनशिप काम आता है। यहाँ पे यू से कि यू मेड माय करियर, ओके फॉर यू आई विल डू इट इन दिस मच मनी। Correct. बिकॉज समटाइम क्या होता है कि एक तो क्या होता है जब आप बन जाते हैं ना, तो सारे आपके रिश्तेदार बन जाते हैं ना। स्टार्टेड विद मी। ऐसा कितने लोगों का स्टार्ट किया है। हाँ. जो हंसल मेहता बोल सकता है अंडरस्टैंड, बिकॉज स्टार्टेड विद, इम्तियाज बोल सकते हैं, राजू सर बोल सकते हैं, अनुराग बोल सकते हैं। अब मैं देखता हूँ सभी बोल रहे हैं। अरे ये तो स्मॉल चलते ट्रेन में तो सबको चढ़ना है। सक्सेस, ट्रैक सक्सेस। So when Mukesh started becoming big, okay, in the early stages, when let's say after Gangs of Wasseypur, was there a situation where you felt कि someone's trying to pull me down, or some more powerful person from the industry is trying to pull me down or trying to pull your name down कि no यार ये बहुत बड़ा हो जाएगा अगर इसको आज नहीं रोका तो? Does that happen? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आई थिंक उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, शायद मैं तभी यहाँ पहुँचा हूँ। ऑफकोर्स बाद में जब आप थोड़े और बड़े बीच में आ जाते तो फिर कोई वेंडेटा लेते हैं, जेलसी होती है, बिकॉज हमारा बहुत सेंसिटिव जॉब में रहते हो ना, बहुत वनरेबल जॉब में रहते हो, तो बाद में तो होता ही है, सबके साथ होता है यार। But has it ever been that you've heard sentiments or you've not intended to, but किसी को लग गया कि यार गलत किया मुकेश ने मेरे साथ? कास्टिंग जॉब ऐसा है ना कि आपको नहीं पता कि आप यू रिजेक्ट मोर पीपल एंड सेलेक्ट लेस। किसी को, and that's a brutally difficult job to do. मेरा कि मैं 800 लोगों को रिजेक्ट कर रहा हूँ, उसमें 1-2 सेलेक्ट करता हूँ। जब किसी को रिजेक्ट करते हैं ना, तो कभी कभी वो लोग पॉजिटिवली लेते हैं, कभी कभी बहुत नेगेटिवली लेते हैं, बिकॉज सेंसिटिव जॉब है ना। एक्टर का क्या है, बहुत कम काम है, इतने सारे हैं, तो आप किसी को, बहुत से लोग हर्ट होते हैं यार, आपको मालूम नहीं चलता कि उसको क्या फील हो रहा है। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। मैंने लेटर रियलाइज किया इज वेरी एंग्री। अब से रिसेंटली ऑल्सो 3-4 days ago one actor was screaming, shouting outside my office and I was really upset with that. ऐसे यार क्या करूँ साथ में, बिकॉज हो जाते हैं लोग कभी कभी अपसेट। But has it been कि आपने कोई बहुत अच्छे एक्टर को रिजेक्ट कर दिया, but then later on that actor came out to be like, wow, I regret doing that to you? नहीं यार, नहीं? आई थिंक मैं किसी अच्छे एक्टर को नहीं छोड़ता हूँ। नहीं, टच वुड। And what is that one actor in your opinion that stood out like, yeah, my best find? I think Sushant. Okay, of course, that was, you were very outspoken about. Yeah, everywhere. Yes. I think Rajkumar. Okay. Even Vicky.
कि कौशल सी हाउ एक दिन एक्टर को अविनाश तिवारी आउटस्टैंडिंग I've heard that he's a एक्टर, great guy. ग्रेट गाय, और फ्रॉम कब से मैं उसके साथ लगा हुआ यार. एक शो आया था युद्ध करके, एक नया एक्टर भी रिसेंटली अभी ब्लैक वारंट में उसको कास्ट किया था. ऐसे वो निकला हाँ करेक्ट. तो हरियाणवी गाय हु प्लेड, वो कहाँ से आ गया और आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि नाउ में जब आपको किसी एक्टर से प्यार हो जाता है ना जनरल बिकॉज ऑफ टैलेंट, तो आपको बहुत मन करता है उसको बार बार कास्ट करने का. जैसे विक्की के साथ हुआ, राजकुमार के साथ हुआ, तो अभी तो मैंने बैक टू बैक 3 फिल्मों में कास्ट किया क्या ये ही डिजर्व, इसको आगे डालो. आई थिंक ऐसा, आई थिंक बहुत सारे हैं यार ऐसे. पंकज का जब सरप्राइज हुआ गैंग्स ऑफ वासेपुर में, पंकज त्रिपाठी बिकेम पंकज त्रिपाठी. जयदीप मैं वेरी प्राउड बिकॉज उसने रॉकस्टार में एक सीन किया था मेरे साथ. ही प्लेड रणबीर एल्डर ब्रदर. एक छोटा सा सीन, छोटा सा रोल था. I think I'm very proud of all these movies. But has it ever been that people have looked at you and said that you're trying to, you know, be or favoriting a certain person, or you're like favoritism in certain way? यार होता है, सबको ऐसा लगता है. बिकॉज मुझे लगता है कि हम लोग सिर्फ अपने टैलेंट को फेवरेट करते हैं. बिकॉज अल्टीमेटली मैं अगर कोई खराब कास्टिंग करूंगा तो मुझे कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर रिपीट नहीं करेगा. लेकिन अगर आपको एक्टर अच्छा लगता है तो वो सडनली हो, आप बाकी सारे सेम एक्टर को 50 जगह क्यों देखते हो? सबको अच्छा लगता है ना वो एक्टर. सडनली यू सी सौरभ सचदेव एवरीवेयर, यू सी कुमुद मिश्रा एवरीवेयर, यू सी सीमा बाबा एवरीवेयर. क्यों? ये फेवरेटिज्म नहीं होता. यू लाइक द परफॉर्मेंस, यू रियली वांट टू सपोर्ट द टैलेंट. But has it ever been कि एक डायरेक्टर ने आपको बोला है कि यार एक्टर बहुत अच्छा है बट बिकेगा नहीं? बहुत बार होता है. बहुत बार होता है. बहुत बार. लेकिन बाद में जब वो बन जाता बोलते इसको लिया, मैं बोलता तुमने बोला तो बिकेगा नहीं. तो मुझे बड़ा मजा आता है इस दोबारा गेम खेलने में. हाँ. जैसे जिस एक्टर को मैंने बिगनिंग में बोला ना कि ये बहुत अच्छा है, सर ले लो, ये कल को बहुत बड़ा बनेगा. नहीं यार जो देखेंगे. अब उसके बाद सेम डायरेक्टर मुझे 4 साल पर कट्टू यार एक बार उसकी डेट डलवा दे. राघव जुआल मिलेगा क्या? राघव जुआल ऐसा नहीं मिलेगा अभी. तो ये बहुत मजेदार गेम है बम्बई में. इसलिए मैं किसी को ये नहीं बोलता कि तेरा नहीं हो सकता इस शहर में, क्योंकि यहाँ पे ही हो सकता है. You know, for a young actor, if I may ask you, what do you think is the right time? Let's say a 15-year-old or a 20-year-old young actor who's aspiring to be an actor. When is the right time for them to come to you and audition? That okay, अब तू रेडी है, अब तुझे ट्राई करना शुरू कर देना चाहिए. नहीं, रेडी का कोई भी ऐसा सेट फॉर्मूला नहीं है. नहीं है. क्योंकि कभी कभी फिल्म ऐसी होती है कि जब आप दरअसल जफारी ने 13 साल में शुरू कर दिया था. But didn't work, right? आफ्टर दैट वो फिल्म का किसी कास्टिंग राइट होनी चाहिए. अब आहान पांडे 21 साल से लगा हुआ है. उसका लॉन्च तो 21 साल पहले 10 साल पहले होना चाहिए था, लेकिन हुआ कब? जब वो 28 का हो गया. 7-8 साल पहले से ट्राई कर रहा है. आई थिंक इट्स नॉट अबाउट द एज, इट्स अबाउट द राइट कास्टिंग एंड टाइमिंग. बहुत सारे एक्टर हैं जिन्होंने, बमन ईरानी स्टार्टेड एट 42. Yeah, I was just going to talk about it, right? He started so late in life. तो आई थिंक वो इट्स नॉट अबाउट आई थिंक टुडेस टाइम की जो भी फिल्म जब क्लिक करती है ना तब की बात है. कभी कभी किसी को बहुत साल लगते हैं वहाँ पहुँचने में. अनित पड्डा को 2 साल पहले मुंबई आए, 3 साल पहले मुंबई आए. तो नाउ यू सी वे आफ्टर सयारा वे. आई थिंक वो टाइमिंग और एज का उससे लेना देना नहीं है. जब आपको पिक्चर मिल गई ना, उस पिक्चर के राइट कास्टिंग से लेना देना है. वो पिक्चर अगर आपको हिट होगी तो फिर आप किसी कैसे बोलोगे कि राजकुमार ने सही स्टार्ट किया कि लेट स्टार्ट किया? किसी को नहीं पता. 19-20 पे लड़के को पूरे तरीके से तैयार होकर शुरू हो जाना चाहिए ताकि इसको 1-2 साल पकने में जमने में लगे. But you know, कुछ साल पहले there was this हवा about this term which was nepotism. Do you think there is something as that actually there, or it's just like I a think word misused now? I think है. Okay. मैं बताता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे उससे बुरा भी नहीं लगता. जयदीप बिलावत भी मेरे वजह आज बहुत बड़ा स्टार है. पंकज भी लीड कर रहा है, जयदीप भी लीड कर रहा है, विजय वर्मा लीड कर रहा है. अगर वो सोच रहे हैं कि उनको शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान बना, नहीं बन पाएंगे. I have one question and I can't like not ask you that question because it's like a question that everybody probably wants to hear. What is casting couch all about? ऐसा क्या कर रहे हो यार? मतलब जो दुनिया सिर्फ उसी बारे में बात कर रही है.